آج کا جو ہمارا مضمون ہے خدا کے کلام میں سے وہ ہے وقت کو غنیمت جانو۔ آئیے مقدس کلام کا یہ حوالہ افسیوں 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے اس حوالہ کو پڑھیں گے۔ مقدس پولس رسول نے افسس کی کلیسیا کو خط لکھا اور ان کو یہ خاص نصیحت کی، ان کو ہدایات جاری فرمائی اور یہ کہا کہ وقت کو غنیمت جانو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو بات ہوگی جو مقدس پولس رسول نے سنی ہے، جو کلیسیا کے بارے میں رسول جانتا ہے کہ وہ وقت کی بے قدری کر رہے ہیں، وہ وقت کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں، ان کی سوچ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس سبب سے رسول نے جب یہ لیٹر تحریر فرمایا تو کلیسیا کو، ایمانداروں کو یہ کہا کہ وقت کو کیا جانو؟ غنیمت جانو۔ 15ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ افسیوں 5واں باب اس کی 15ویں آیت۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ مقدس کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین آمین۔ میرے عزیزو، رسول کا یہ خط جو ہے یہ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا، ایمانداروں کو جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ان کو یہ خط لکھا گیا۔ اور وہاں پر افسس میں جو مسیحی لوگ تھے، وہ مسیحی لوگ پہلے کچھ تو یونانی تھے اور کچھ یہودی تھے، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور انہوں نے توبہ کی، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، مسیح پر ایمان لے آئے اور وہ مسیح کہلائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یونانی لوگ جو یونانی عقیدے پر یقین رکھتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ وقت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ یہ سوچتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی میں اور بھی موقع تھے کہ اگر اس زندگی میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے جنم میں، یہ بات آپ نے سنی ہے نا، تو اور جنم ملیں گے اور زندگی ہمیں ملے گی تو اس میں ہم یہ کام کر لیں گے۔ وہ یہ سوچتے تھے، وہ وقت کو ضائع کرتے تھے۔ میں کن کی بات کرتا ہوں؟ یونانیوں کا جو عقیدہ تھا اس کے مطابق، لیکن چونکہ ان کے ساتھ اب یونانی مسیح بھی تھے، جو پہلے یونانی تھے مسیح کو قبول کیا ہے، تو اب ان کے ایمان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں مسیح لوگ بھی وقت کو ضائع نہ کریں۔ کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کہ زندگی پھر ملے گی۔ لیکن بائبل مقدس ایسا نہیں فرماتی ہے، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک دفعہ ہی ملتی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ اب غنیمت کا کیا مطلب ہے؟ غور کیجئے، میں آپ کو غنیمت کا دو طرح سے مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ جو غنیمت کی یہاں پہ تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم وقت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے
पूरा फायदा नहीं उठा सके तो जितना उठा सके उतना ही सही। हम कहते हैं ना, चलो जो कुछ हाथ आया वही गनीमत सही। एक तो इसका मतलब ये है, लेकिन जहां पर जो इसके लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी तशरीह ये है कि वक्त को खरीद लो, वक्त को कैद कर लो, वक्त को गनीमत जानो, उसको खरीद लो मौके को, क्योंकि जो मौका गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता। ऐसे ही है ना, वक्त जो एक दफा निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। मैं आपको ये बताऊं, हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ बरकतें रखते हैं। किसी का घर अच्छा है तो किसी का क्या है, माड़ा है। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी के पास कम है। किसी की सेहत ज्यादा अच्छी है तो किसी की कम अच्छी है। किसी का घर 2.5 मरले का है कि किसी का घर कनाल का है। सबके पास फर्क चीजें हैं जो खुदा ने दी हैं, जो मेहनत करके हासिल की गई हैं, फर्क चीजें हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है, सुने, जो सबको एक जैसी ही दी गई है। वो चीज क्या है? वक्त है। वक्त सबको एक जैसा दिया गया है। अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, सबको एक जैसा वक्त दिया गया है। सबके लिए सुबह होती है, शाम होती है, दिन ढल जाता है और वक्त हाथ से निकल जाता है। अब हर शख्स की जिम्मेदारी यह है कि जो वक्त मिला है उसमें वो कुछ कर ले। वो उसमें क्या करे? कुछ कर ले। उसमें वो मेहनत करे, उसमें वो बीज बोए, उसमें वो हल चलाए, उसमें वो फैक्ट्री जाए, उसमें वो मेहनत करे, मजदूरी करे, पढ़े, जो कुछ भी करे। वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो फिर हाथ नहीं आता है। इस सबब से रसूल ने इफ्सियों के मसीहों को लिखा कि वक्त को गनीमत जानो। अगर वक्त एक दफा हाथ से गुजर गया तो कोई दूसरा जन्म कोई नहीं है, कोई दूसरी ट्रेन नहीं आनी कि आप उस पर सवारी कर लें, उस पर सफर कर लें। एक ट्रेन निकल गई, कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। वक्त ऐसी ट्रेन है, वो एक ही दफा आता है और गुजर जाता है, वो वक्त दोबारा नहीं आता। क्या आपकी बचपन का वक्त दोबारा आएगा? क्या आपकी जवानी का वक्त दोबारा आएगा? क्या आपकी जो अभी सेहत है ये दोबारा आएगी? जो वक्त गुजरता जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। साल गुजरता है तो हम कहते हैं नया साल आ गया। इसका मतलब है पुराना साल गुजर गया, वो वापस नहीं आएगा। हम कहते हैं जी मेरा बर्थडे है, यानी आपका जन्मदिन है, आपकी जिंदगी में से साल कम हो गया है, अब आप 1 साल और मौत के करीब हो गए हैं, आपकी जिंदगी में से साल कम हो गया है। खुशी तो अपनी जगह है कि जन्मदिन है, लेकिन अफसोस ये भी है कि हम मौत के करीब होते जा रहे हैं जैसे जैसे साल गुजरते चले जा रहे हैं। तो वक्त को गनीमत जानने के लिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। रसूल मुकद्दस ने इस बात पर जोर दे के इफिसस की कलीसिया को और आज हमें ये फरमाया है कि वक्त को गनीमत जानो। वजह क्या बताई है? कि दिन बुरे हैं। हम जिस दौर में से गुजरे हैं ये बुरे दिन हैं। हम जिस जमाने में से गुजरते चले जा रहे हैं इसमें बदी है, इसमें गुनाह है, इसमें तारीकी है, लड़ाई झगड़े हैं, नफरत है, खून खराबे हैं, खुदकशी है और ऐसी लानते खानदानों के अंदर तासीरें काम करती हैं। वहाँ पर अगर हम बात करें कलाम की, निजात की, तौबा की, तो लोगों की ज़हनी हालत ऐसी हो जाती है कि लोग कलाम को कबूल ही नहीं करते, तैयार ही नहीं होते। कलाम को मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब आप सोचें कि दिन भी बुरे हैं, वक्त भी थोड़ा है, तो हमने क्या करना है? थोड़े वक्त में बड़ी हिकमत से जिंदगी बसर करनी है, वक्त को गनीमत जानना है। अगर वक्त को गनीमत जानने की इस्तिलाह हम सौदागरों से पूछें, ताजरों से पूछें, किसानों से पूछें,
उन लोगों से जो मछलियां पकड़ते हैं उनसे पूछें तो वो वक्त पर कड़ी नजर रखते हैं, वो हालात पर कड़ी नजर रखते हैं, वो मौसम पर कड़ी नजर रखते हैं। उनको वक्त को गनीमत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने गलत वक्त पर बीज बो दिया तो क्या होगा, बारिश हो जाएगी, हमारा बीज नहीं उगेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। और इसी तरह ताजरों को पता है कि हमने किस मौके पर क्या कारोबार करना है, हमने किस मौके पर कौन सा सौदा खरीदना है जो हमें नफा दे सके। अगर इन लोगों से हम इसकी इस्तिलाह पूछें तो उनके नजदीक ये बात बड़ी अहम है और वो हमेशा नजर रखते हैं सूरत हाल कैसी है, मार्केट के हालात कैसे हैं, कारोबार की अभी सूरत हाल कैसी है, मुल्की हालात कैसे हैं। वो वक्त पर कड़ी नजर रखते हैं, वो वक्त को गनीमत जानते हैं। मैं एक दफा अभी अब्दुल्ला के पुल पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक बर्फ वाला फट्टा था, वहां से हमने कुछ बर्फ खरीदनी थी। तो मैं गौर कर रहा था कि बर्फ के जो ब्लॉक हैं वो पिघलते जा रहे हैं, पानी नीचे गिरता जा रहा है तेजी के साथ। मैं ये सोच रहा था इस शख्स के ज़हन में क्या चल रहा होगा कि मेरी बर्फ जल्दी से बिक जाए। अगर ये ना बिकी तो शाम तक क्या हो जाएगा, बोलिए, ये बर्फ खत्म हो जाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा। उसके नजदीक वक्त कितना अहम है, वक्त की कदर कितनी ज्यादा है, वक्त उसके लिए कितना गनीमत है कि वो इस वक्त में अपना कारोबार करना चाहता है, वो अपना सौदा बेचना चाहता है। अगर वो ना बेच सका तो शाम तक तो ये बर्फ खत्म हो जाएगी। गौर कीजिए, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपकी जिंदगी क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है, बर्फ के ब्लॉक की मानद है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उम्र ढलती जा रही है, सेहत नीचे जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान हर रोज एक दिन आगे मौत के करीब करीब होता चला जा रहा है। साल गुजरते हैं तो हम एक साल और मौत के करीब चले जाते हैं। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम कैसे जमाने में से गुजर रहे हैं, बुरे जमाने में से। और ये बुरा जमाना पहली दफा नहीं आया। बुरा जमाना जब आप नूह का दौर देखें तो बुरा जमाना उस वक्त भी बहुत था, बुराई आसमान तक थी। लेकिन क्या है कि एक वक्त होता है, बाद में वो वक्त गुजर जाता है। कुछ अच्छा करने का एक मौका होता है, बाद में मौका गुजर जाता है। नूह ने कश्ती बनाई, नूह ने लोगों को दावत दी, आओ कश्ती में आ जाओ, तौबा कर लो, गुनाह छोड़ दो, बदी छोड़ दो। तो लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया, ठट्ठे उड़ाए। लेकिन जब तूफान आया पानी का तो वही लोग अब क्या कर रहे हैं, वो कश्ती का दरवाजा खटखटा के नूह को आवाजें देते होंगे कि बाबा जी हमारे लिए दरवाजा खोल दें। लेकिन अब दरवाजा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, अंदर से बंद हुआ है, खुदा ने किया है। अगर आप वहां पे पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने नूह को कहा कि कश्ती के अंदर आ। इसका मतलब है खुदा पहले अंदर मौजूद है। जो बंदा कमरे के अंदर होता है वो कहता है अंदर आ जाओ, कभी बाहर वाला खड़ा बंदा कभी नहीं कहता अंदर आ जाओ, वो कहेगा कमरे के अंदर जाओ। इसका मतलब है खुदा पहले वहां पर मौजूद था। तो खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया। अब उन लोगों के लिए तौबा का, निजात का दरवाजा बंद हो चुका था, क्योंकि उनको बहुत मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने वक्त को गनीमत नहीं जाना।
उन्होंने वक्त की कदर नहीं की, उन्होंने वक्त को कैद नहीं किया, उन्होंने वक्त को खरीदा नहीं है। और इसी तरह 10 कुमारियों की मिसाल है। 5 कुमारियों ने वक्त को गनीमत जाना, जो उनको मौका मिला भरपूर तैयारी की और उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि जब दुल्हा आएगा तो हम जश्न में शरीक होंगी। लेकिन 5 ऐसी भी थी जो कहती थी कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, तैयारी कर लेंगे। ऐसी भी कुंवारियां थी। लेकिन हमें पता है कि जब दुल्हा आ गया और क्या हो गया, दरवाजा बंद हो गया। तो जब उन्होंने दस्तक दी तो क्या हो चुकी थी? उस वक्त देर हो चुकी थी, देर हो चुकी है। जो वक्त तुम्हारे दाखिल होने का था, जश्न में शामिल होने का वक्त तुम्हें दिया गया था, उस वक्त पे दाखिल नहीं हो सके। अब बाद में तैयारी कैसी? जब यीशु आ जाएगा और या हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। मौत के बाद कौन तेरी सिताइश करेगा है खुदावन? मौत के बाद कोई चांस नहीं है। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी जिंदगी में रहकर वक्त को गनीमत जाने, वक्त की कदर करें, वक्त को कैद करें, वक्त को खरीद लें अपने लिए, उसमें काम करें खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए। इसी तरह ही तौबा का पैगाम, इंतबा का पैगाम, निजात का पैगाम नैनवा के लोगों को दिया गया, नैनवा के लोगों को दिया गया। और उन्होंने क्या की? तौबा की। बाइबल मुकद्दस फरमाती है सब ने तौबा की। बादशाह ने भी, फकीर ने भी, बड़े ने भी, बच्चे ने भी, सब ने रोजा रखा, टाट ओढ़ा, सार में खाक डाली और खुदा की हुजूरी में अपने गुनाहों का इकरार किया। और खुदा ने उनको क्या कर दिया? माफ कर दिया। खुदा ने उनको माफ कर दिया। उन्होंने वक्त को गनीमत जाना, उन्होंने कलाम पर यकीन किया। हम इसलिए वक्त को गनीमत नहीं जानते क्योंकि हम कलाम पर यकीन नहीं करते हैं। खुदा हमारे साथ कलाम करता है, हमें सिखाता है और खुदा चाहता है कि हम वक्त को गनीमत जाने। अगर गलतियों के खत को 6 बाब की 10वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, जहां तक मौका मिले सबके साथ भलाई करो। मौका मिले, वक्त मिले, तो हमें मौका मिला है, हमें ये वक्त दिया खुदा ने। इस वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि फिर वो वक्त आता है कि जब हम कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर कोई चांस नहीं होता। और अगर हम रोमियो 13वें बाब की 11वीं आयत पढ़ें तो लिखा है वक्त को पहचानो। वक्त को पहचानने का क्या मतलब है? वक्त की कदर करो। जो तुम्हें मौका मिला है और साथ सेहत भी मिली है, इसमें खुदा का काम करना है। तो जब हमारी सेहत जवाब दे जाती है, हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखें, जो हमारे कानों की खिड़कियां हैं, आंखें धुंधला जाती हैं और गली के कवाड़े बंद हो जाते हैं और पिसने वालियां रुक जाती हैं और वो जो बाहर झांकती हैं धुंधला जाती हैं, तो फिर तो हम खुदा की तरफ लौटते हैं, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होती है। आपके पास जो अब ये वक्त है, बेशक जमाना बुरा है, लेकिन आपके पास सेहत है, आपको खुदा ने अच्छा मौका दिया है, कलाम आपकी रहनुमाई कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि इस मौके से फायदा उठाएं। 90 ज़बूर के अंदर बुजुर्ग मूसा ने क्या फरमाया है कि ऐ खुदावंद हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा।
زندگی کے دن گننا سکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے 1 2 10 20 30 50 100، یہ بات نہیں ہے کہ میں زندگی کے دن ہی گنتا رہوں اور کام ہی کوئی نہ کروں۔ یہی مطلب ہے زندگی کے دن گننے کا کہ ہم وقت کو، دنوں کو سوچ سمجھ کر ہوش کے ساتھ گزاریں، کیونکہ زندگی ہمارے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے۔ میں ترکی کے ایئرپورٹ پر تھا، جب میں یورپ گیا تو ترکی کے ایئرپورٹ پر تھا، تو وہاں پر میرا 12 گھنٹے کا سٹے تھا۔ تو ایئرپورٹ پر اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ ساری دنیا کو وہاں سے فلائٹس جاتی ہیں، یعنی وہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ اس کے 520 گیٹ ہیں، 520، یعنی چاروں طرف جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ بورڈنگ پاس ملنے کے بعد جہاں پر آپ نے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہے تو وہاں پر 520 گیٹ ہیں۔ تو ایک خاتون تھی جس کو اپنا گیٹ بھولا ہوا تھا اور وہ غلطی سے کسی دوسرے گیٹ پر چلی گئی۔ اتنا بڑا وہ رقبہ ہے، مربوں میں ہے، مربوں میں۔ پھر وہ عورت جو ہے، لوگ اس طرف کو آ رہے ہیں، عورت الٹی طرف دوڑ کے بیگ اٹھا کے جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے جایا نہیں جا رہا کیونکہ رش ہے، بہت رش ہوتا ہے۔ اب جب اینڈنگ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ عورت بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ اس کی فلائٹ نکل گئی تھی۔ تو اسی طرح زندگی میں جب موقع گزر جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ایک مثال ہے۔ خیر وہ نقصان اٹھائے گی اور دوسری فلائٹ سے چلی تو جائے گی، لیکن زندگی ایسی نہیں ہے۔ بے شک اس کو تکلیف ہوئی، ہم اس وقت کو جب ہاتھ سے گزار دیں گے تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج اپنی زندگی کا سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم وقت کو ضائع تو نہیں کرتے، ہم وقت کو غنیمت جانتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں اچھی صحت میں اس زندگی میں اچھے موسم میں کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں۔ وہ وقت جب ہماری صحت ساتھ نہیں دے گی، ہمارا بدن ساتھ نہیں دے گا، ہماری سانسیں ساتھ نہیں دیں گی، تو پھر ہم خدا کے سامنے رٹا ڈال کے بیٹھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، یہی قبولیت کا وقت ہے، یہی توبہ کا دن ہے، یہی نجات کا دن ہے۔ خدا کے کلام کو سنجیدگی سے اپنے اندر لیں اور وقت کو غنیمت جانیں۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔